Oh. They all are quadrilateral. Yes, you all are very right that we are going to discuss about quadrilaterals. But with whom? With me, myself, Pooja Pratihasta, Kendriya Vidyalay, Greater Noida. Mathematics teacher? Na. Mathematics facilitator. So let's start this journey for meeting with quadrilaterals. With me. क्वाड्रिलैटरल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें फ्लैट सरफेस यानी प्लेन सरफेस के बारे में जानना होगा. प्लेन सरफेस मींस हैविंग टू डायमेंशन, आइदर लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और हाइट, ब्रेथ और हाइट. प्लेन का मतलब होता है फ्लैट. एक्चुअली यूक्लिड नाम के मैथमेटिशियन जो फादर ऑफ ज्योमेट्री जाने जाते हैं, यूक्लिड ने पूरी धरती को फ्लैट मानकर सारी ज्योमेट्री की संकल्पना की थी. तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री को ही बेस मानकर, उनके ही अजम्पशन को बेस मानकर हम लोग सारे काम करते हैं. प्लेन सरफेस जस्ट लाइक योर पेज ऑफ योर कॉपी, पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक. Polygon means poly and gona. Poly means many and gona means sides or angle. So a figure which has many sides or angle. But for being polygon there are some conditions. First condition is it should be closed figure. And second condition is it should be plane figure. And third, it consists of only line segments, not curves. You can easily observe from these figures the some set of figures are polygon and the some set of figures are not a polygon. You can easily differentiate among these figures the figures which are polygon made up of by line segments only and they are closed plane figure. But with the figures which are not a polygon, they are either open or made up of by curve. Polygon can be classified according to their number of sides or angles. You are very familiar with triangles. Triangles consist of 3 sides, 3 angles. It is a closed plane figure, so it is a good example. It is a good example of polygon. Similarly, quadrilateral, it is very clear by its name, quadri and lateral. Quadri means 4, lateral means sides. So it is a closed plane figure having 4 sides. Similarly, pentagon having 5 sides, a polygon. Hexagon is an example of polygon having 6 sides. Heptagon, you can see 7 sides. Octagon, 8 sides. Nonagon, 9 sides. Decagon, 10 sides, and so on. Quadrilaterals. Quadrilaterals, it is very clear by its name, quadri and lateral. Quadri means 4 and lateral means sides. So you can see here several figures are given of quadrilateral. It is a closed plane figure having 4 sides. It has 2 diagonals and 4 angles. Now we are talking about types of quadrilateral. Quadrilaterals के कितने types होते हैं, इस पर थोड़ी बात करते हैं. It's just like it can be understood by tree diagram. ट्री डायग्राम इसलिए क्योंकि क्वाड्रिलेटरल एक ट्री की तरह है और उसके सारे टाइप्स को आप एक ब्रांचेस की तरह समझ सकते हो. लाइक आप अभी तक समझ चुके हो कि क्वाड्रिलेटरल इज अ 4 साइडेड पॉलीगन एंड क्वाड्रिलेटरल को कई हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिसमें मेनली हम लोग 3 तरीकों पे इस क्लास में बात करेंगे. एक तो है ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम में only one pair of opposite side is parallel. That is known as trapezium. Trapezium is a kind of quadrilateral in which only one pair of opposite side is parallel. So that is known as trapezium. And other kind of kite. Kite, तो everybody can understand that what is kite. Kite तो आप लोग उड़ाते हो, kite को सोच के ही आप लोग खुश हो जाते हो. But kite होता कैसे है और क्या इसमें स्पेशल क्वालिटी है about quadrilateral? तो kite में opposite adjacent sides, consecutive sides should be equal. Kite की ये खासियत है कि इसके consecutive sides equal होते हैं. एंड तीसरा जो कैटेगरी हम लोगों को पढ़ना है दैट इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम इज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल. पैरेललोग्राम, इट्स वेरी क्लियर बाय इट्स नेम itself that parallelogram means both pair of opposite sides should be parallel.
then you can say this quadrilateral is a parallelogram. So just pay attention that what is the difference between trapezium and parallelogram. Trapezium में आपको only one pair of opposite side parallel होगा और parallelogram में both pair of opposite side parallel होते हैं. Okay, parallelogram को दो हिस्सों में बांट सकते हैं. पैरेललोग्राम की ही दो खासियत लेके दो अलग तरह के क्वाड्रिलैटरल बने हैं. एक है रोम्बस एंड दूसरा है रेक्टेंगल. रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं. रोम्बस एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं. सो इट इज अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल. एंड व्हाट अबाउट रेक्टेंगल? सो रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम बट हैविंग all angles equal, means one angle 90 degree, each angle 90 degree. Okay, so और rhombus और rectangle दोनों की प्रॉपर्टी को अगर मिला दें तो you'll get a square. So a square is a special kind of parallelogram in which all properties of rhombus as well as rectangles exist. Okay, let us discuss about angles of polygon. एंड जब एंगल्स की बात होगी तो इंटीरियर एंगल्स एज वेल एज एक्सटीरियर एंगल्स दोनों की होगी बिकॉज पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर. इंटीरियर एंगल्स अगर पॉलीगन्स का हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि तीनों ऑल एंगल्स इंटीरियर एंगल्स के सम कितने होते हैं पॉलीगन्स के. सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक पॉलीगन दैट इज ट्राइंगल. ट्राइंगल में के 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल इंटीरियर एंगल 3 होते हैं और तीनों एंगल्स का सम आप यहाँ से देख सकते हो कि इट विल बिकम अ सेमी सर्कल. सेमी सर्कल मीन्स 180 डिग्री. तो और ऐसा सिर्फ इसी तरह के ट्राइंगल के लिए नहीं, इट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्राइंगल. आप ट्राइंगल किसी भी तरीके का बनाओ, एक्यूट बना लो या फिर राइट एंगल ट्राइंगल बना लो या फिर आप ऑब्ट्यूस ही बना लो. ऐसे अगर आप ऑब्ट्यूस बना रहे हो तो ऑब्ट्यूस के लिए भी ये ट्रू है. जैसे आप अब ये देख सकते हो कि 180 डिग्री ये सेमी सर्कल हो गए. सेमी सर्कल. नाउ कम टू द एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल्स की जब बात करेंगे तो सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल पहचानना आना चाहिए. एक्सटीरियर एंगल किसको कहते हैं? टेक वन डायरेक्शन आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज और आप ट्राइंगल के तीनों साइड को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे. लाइक अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो अगर इसको एक्सटेंड करूँ तो ब्राउन कलर के शेप में जो एंगल है दैट विल बी एक्सटीरियर एंगल. अगर इस साइड को करूँ तो ये रेड कलर में और अगर इस साइड को करूँ तो ये ग्रीन कलर में है. और अगर इन तीनों का सम अगर देखना चाहते हैं सो यू कैन सी दिस विल बी अ कंप्लीट सर्कल. अगर आप इसको हर एक तरह के ट्राइंगल में देखना चाहते हो, लाइक अगर ऐसे देख रहे हो तब देखो कि एक्सटीरियर एंगल का सम ये कंप्लीट सर्कल बनाया मीन्स 360 डिग्री. आप एक बार फिर देखो, ये तीनों एंगल्स आपस में जाकर जुड़ते हैं और एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं. It means sum of exterior angle of a triangle equals to 180 degree and sum of interior angles of a triangle equals to 180 degree. अब पॉइंट ये है कि क्या अदर टाइप ऑफ पॉलीगन के लिए भी ये बातें ट्रू है. सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर बेसिक वन दैट इज क्वाड्रिलैटरल. क्वाड्रिलैटरल के 4 एंगल्स होंगे एज इट इज वेरी क्लियर बाय नेम इटसेल्फ. तो आप कोई सा भी क्वाड्रिलैटरल ले लो अगर और इनके 4 एंगल्स हैं, इन चारों एंगल का सम कितना होगा जस्ट चेक इट. आप देख रहे हो कि 2 सेमी सर्कल हमें मिल रहा है 180 प्लस 180 360 डिग्री. ऐसे भी आप यू कैन ऑब्जर्व वेरी इजली दैट द क्वाड्रिलैटरल इज डिवाइडेड इनटू 2 ट्राइंगल एंड द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री एंड अनदर का भी 180 डिग्री होगा तो फिर दोनों मिला के 360 डिग्री होगा. सिमिलरली एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाएंगे? टेक वन डायरेक्शन इधर इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. तो अगर आप इस साइड को एक्सटेंड करेंगे सो दिस ऑरेंज कलर शेप्ड एंगल विल बी एक्सटीरियर एंगल. अगर इसको करोगे तो ब्लू कलर, अगर इस साइड को करेंगे तो ये ब्राउन कलर और इस साइड को करेंगे तो पर्पल कलर.
और अब हमें ये देखना कि इन चारों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है। तो लेट्स चेक। आप ये देख रहे हो कि कंप्लीट सर्कल फॉर्म कर रहा है, यानी 360 डिग्री। मीन्स एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 और इंटीरियर एंगल का सम 360। आप इसको किसी भी तरह के क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में कर सकते हैं। लाइक अगर आप स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में भी कर सकते हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, किसी भी तरीके में आप इसको चेक कर सकते हो। यू विल गेट दिस। एंड अगर आप कनकेव के फॉर्म में कर रहे हो, कनकेव के फॉर्म में कर रहे हो, तो फिर आप तब भी आप देखोगे कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होल्ड करती है। यू विल गेट अगेन कंप्लीट सर्कल। So let's start with another type of polygon like pentagon. क्या ये पेंटागन के लिए भी ट्रू है? सो पेंटागन के लिए भी वेरीफाई करते हैं। सो देयर इज अ पेंटागन. You can take any kind of pentagon, and it is very clear by its name that it has 5 angles. And if you try to find out the sum of all 5 angles, you will get 180 degree, 180 degree and 180 degree, 540 degree, means 3 semicircle you will get. Okay, ऐसे भी आप देखो 3 ट्रायंगल में आप इसको डिवाइड कर रहे हो, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 540 डिग्री इनका सम होगा। अगर आप एक्सटीरियर एंगल की बात करते हो, एक्सटीरियर एंगल पहले आप ड्रॉ करेंगे। सो वन एक्सटीरियर एंगल, दिस रेड कलर, दिस पर्पल कलर, दिस ब्लू कलर, ब्लैक कलर एंड ग्रीन कलर. And if you want to check what is the sum, then you can see that this will complete a complete circle. This will make a complete circle, and a complete circle means 360 degree. Okay, so ऐसा नहीं कि आप इसी तरह के पेंटागन को लेके आप कर सकते हो। आप किसी भी तरह के पेंटागन पे आप ये ट्राई करके चेक कर सकते हो कि इनके एक्सटीरियर एंगल का सम 540 होगा और इंटीरियर एंगल का सम 540 होगा, और एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा और इंटीरियर एंगल का सम 540 डिग्री होगा। इस तरह से आप वेरियस काइंड ऑफ पेंटागन को देख सकते हो, और आप ये देखोगे कि एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज हेक्सागन के केस में भी 360 ही होता है, और इंटीरियर एंगल का सम यहाँ कितना होगा? 720 होगा, बिकॉज 1 हाफ सर्कल, 1 हाफ सर्कल, 1 हाफ सर्कल, 1 हाफ सर्कल, 4 हाफ सर्कल, सो 720 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हुआ। पैरेललोग्राम. Parallelogram is an interesting kind of quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel. If only one pair of opposite side, then it become trapezium, not parallelogram. But both pair of opposite sides is parallel, then you can say that quadrilateral must be a parallelogram. And in your daily life you can meet several times parallelogram. आपको बहुत जगह parallelogram देखने को मिल जाएंगे। लाइक आपको दिख रहा है बहुत सारे एग्जाम्पल्स, और बहुत सारे डेली लाइफ एग्जाम्पल्स आप भी ढूंढ कर रखोगे जहाँ पे parallelogram की यूज होते हैं। आप बहुत सारे पैरेललोग्राम शेप के कलर पेपर से बना लो पैरेललोग्राम, और उसकी प्रॉपर्टी को अगर देखना चाहते हो कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज है, तो आप उसके डायगोनल्स को नाप के देखो, साइड्स के नाप कर देखो, एंगल्स नाप कर देखो, कम से कम 5, 7, 10 तो करके देखो, तो आप ये पाओगे कि ईच डायगोनल डिवाइड्स इनटू 2 congruent ट्रायंगल्स। साथ ही अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंड डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, वे एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, एंड यू कैन इजीली फाउंड बाय activity by drawing various types of parallelogram and measuring diagonal sides angles. Rectangle is a special kind of parallelogram. रेक्टेंगल में दोनों अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एज वेल एज इक्वल होते हैं, और साथ ही ऑल एंगल्स मस्ट बी 90 डिग्री, इनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रोम्बस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके सारे एंगल इक्वल नहीं होते, बट सारे साइड्स इक्वल होते हैं।
एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इसकी है कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इनके डायगोनल्स एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और 90 डिग्री पर डिवाइड करते हैं। We all are very familiar with square. Square is a special kind of parallelogram. स्क्वायर एक ऐसा शेप है जिसमें रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टी होगी और रोम्बस की भी सारी प्रॉपर्टी होगी। अगर रोम्बस के चारों साइड इक्वल हैं तो स्क्वायर के भी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स 90 डिग्री हैं तो स्क्वायर के भी ऑल एंगल्स 90 डिग्री। एंड इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री जस्ट लाइक रोम्बस एंड इट्स डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल जस्ट लाइक रेक्टेंगल। Everybody is familiar with kite and kite का नाम लेते ही आप लोग बहुत हैप्पी हो जाते हो कि काइट उड़ाना है। अब काइट भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। ये एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है जिसके कंजिक्यूटिव साइड्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। ये काइट रोम्बस की तरह दिखता है बट रोम्बस नहीं होता, इसमें एडजेसेंट साइड्स की लंबाई सेम होती है। Trapezium. Trapezium is a kind of quadrilateral in which only one pair of opposite sides is parallel, not both sides. अगर both sides हो जाएगा तो वो parallelogram हो जाएगा. But only one pair of opposite sides are parallel. Then we can say this quadrilateral must be trapezium. तो चलो कुछ अब इतने सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने लर्न किए उस पर कुछ सवाल करते हैं। लाइक स्टडी द फॉलोइंग पैरेललोग्राम बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। व्हाट कंडीशंस गारंटीज दैट द फिगर इज अ पैरेललोग्राम, यू हैव टू टेल, एंड व्हाई डिड यू से सो। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई स्क्वायर इज अ रोम्बस। सो दिस टू क्वेश्चंस यू हैव टू थिंक। और भी बहुत सारे सवाल आप कर सकते हो, सोच सकते हो। Thank you, and you can suggest me for any kind of modification. Thank you.